سب سے پہلے آپ کو بتائیں ننکانہ صاحب کے قصبے واربرٹن میں مشتعل افراد نے ایک ملزم کو تھانے سے نکال کر ہلاک کر دیا۔ ایس ایچ او سمیت پولیس ملازمین جان بچانے کے لیے تھانے سے بھاگ گئے۔ ملزم توہین مذہب کے الزام میں تھانے میں بند تھا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے انسپیکٹر جنرل پولیس سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ اس سلسلے میں آئی جی نے ڈی ایس پی اور ایس ایچ او کو معطل کر دیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے تھانہ واربرٹن ننکانہ صاحب میں ماورائے قانون قتل کا نوٹس لیتے ہوئے واقعے کی تحقیقات کا حکم دے دیا۔ وزیراعظم نے کہا کہ پولیس نے پرتشدد ہجوم کو کیوں نہ روکا، قانون کی حاکمیت کو یقینی بنانا چاہیے، کسی کو قانون پر اثر انداز ہونے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ امن و امان کے ذمہ دار اداروں کی پہلی ترجیح امن ہی ہے، امن و امان کو ہر صورت مقدم رہنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین پاکستان علماء کونسل علامہ طاہر اشرفی نے ننکانہ صاحب واقعے کی مذمت کرتے ہوئے ملوث ملزمان کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ ننکانہ تھانہ واربرٹن میں توہین قرآن کریم کے ملزم کو تھانے سے نکال کر تھانے پر حملہ کر کے اس کو قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ بات ناقابل قبول ہے۔ اگر کسی نے جرم کیا ہے تو اس کو عدالت کو سزا دینی ہے۔ کسی گروہ، فرد یا جماعت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ خود ہی عدالت بن جائے، خود ہی جلاد بن جائے، خود ہی فیصلے جاری کرے۔ گورنر سندھ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ہم جو انہوں نے بات کی ہے، ہم ایسے تمام معاملات پر ہم نے اپنے تمام سیاسی مفادات جو کہ ہیں بھی نہیں ہمارے، وہ عوام جس کے لیے ہم یہ جد و جہد کر رہے ہیں، ہم نے پاکستان کی خاطر قدم قدم پر بار بار اپنے حق سے دستبردار ہو کر پاکستان کو آگے رکھا ہے۔ آپ تاریخ بھی دیکھ لیجئے کہ بہت سے لوگوں نے یہ دیکھتے ہوئے بھی کہ اسلام آباد میں بڑا اہم غیر ملکی دورہ ہو رہا ہے سربراہان کا، اپنے دھرنے کو کسی بھی صورت میں پاکستان کی قیمت پہ بھی اس دھرنے کو انہوں نے ڈیلے نہیں کیا تھا، مؤخر نہیں کیا تھا، تبدیل نہیں کیا تھا۔ ہم پھر پاکستان اور پاکستان کی محبت کے خاطر یہ قربانی دینے کو تیار ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھی جائے کہ جو ہمارا مطالبہ ہے یہ ایم کیو ایم کا مطالبہ نہیں ہے، اس شہر کا حق ہے جس پہ بات کر رہے ہیں۔ جب پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا یہ اختیار استعمال کر لیا اور یہ بات ہماری مان لی اور 10-1 کا اجرا کر دیا، تو اس کے بعد الیکشن کمیشن کے پاس کوئی اور دوسرا آپشن نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ نئے سرے سے اثر نو حلقہ بندیاں کرتی کراچی میں۔ ہماری یہ بات بھی مان کر یہ ہمارا موقف درست، الیکشن کمیشن، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، کسی نے بھی ہمارے اس موقف کو غلط نہیں ثابت کیا ہے، یہ غلط نہیں قرار دیا ہے کہ کراچی میں جو یو سی کی حلقہ بندیاں ہوئی ہیں، بلدیاتی حلقہ بندی ہوئی ہیں، وہ بددیانتی بھی تھی، وہ تھی مبنی، وہ غلطی ہوئی ہے یا جان بوجھ کر کے کی گئی ہے۔ کراچی کی موجودہ جو آبادی ڈکلیئر کی گئی ہے اس لحاظ سے کم 103 سے 110 یو سی کم کیے، اور جب مذاکرات ہوئے تو ہم نے کہا کہ باٹم لائن یہ ہے کہ آپ کو کم سے کم 73 سیٹیں، 73 یو سی کی حلقہ بندیوں میں کے ذریعے اس میں اضافہ کیا جانا چاہیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے 53 تک کے لیے تیاری کر لی تھی، انتخابات کرا دیے گئے، اس کے باوجود وہ انتخابات جو ہر لحاظ سے غیر قانونی، غیر آئینی تھے، الیکشن کمیشن کے تمام جو اس کے قوانین ہیں اس کے خلاف تھے، جو قومی آئین کے خلاف تھے، تو ہم اس کے باوجود اگر ہم نے ہمارا مقصد اس مطالبے کے پیچھے اپنا میئر لانا ہوتا تو اس انتخابات کے بعد ہم اس مطالبے کو دہراتے نہیں۔ ہمارا یہ مطالبہ کراچی کا حق کراچی کو واپس دلانے کے لیے تھا۔ حیدرآباد کراچی میں ڈسٹرکٹ کونسلز
کو ज़बरदस्ती शामिल कर दिया गया, पूरे सिंध में कहीं नहीं किया गया, तो आप ये नहीं कह सकते कि इंतज़ामी ज़रूरत थी, ये किसी की सियासी ज़रूरत हो सकती है। तो इसीलिए हमने ये मुतालबा दोबारा रखा था, इस पर बात भी की थी। संजीदगी नहीं देखकर तो हमें ये एक इंतहाई इक़दाम उठाना पड़ रहा था। हम आपकी ये बात मान भी लें तो हम इस अपने मुतालबे से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं, और ये कदम जो हमने उठाया इंतहाई बहुत मजबूरी में उठाया था। हम इस शहर में धरना देना अगर किसी का सबसे ज़्यादा हक़ है तो हमारा ही है, लेकिन हमने इस हक़ को सबसे कम इस्तेमाल किया है। हम आपके कहने पे अभी राब्ता कमेटी बैठेगी, इंशाअल्लाह ताला हमने कभी भी वफाक को और इदारों को, कौम की सलामती को, कौम की ज़रूरत और मफाद पर को ही तरजीह दी है, अपने सियासी ज़रूरियात को नहीं, अपने नारों को नहीं। हम आपकी बात इंशाअल्लाह ताला राब्ता कमेटी आज बैठ के इसकी कोई ना कोई शक्ल निकालेगी, लेकिन ये बात बड़ी वजाहत से वफाक तक भी, इदारों तक भी, रियासत तक भी, पाकिस्तान के हुक्मरानों तक भी, वफाक की हुकूमत तक भी, सूबाई हुकूमत तक पहुँचनी चाहिए कि इस मुतालबे से दस्तबरदारी किसी तौर पे भी मुमकिन नहीं है। इलेक्शन में तो हमने कर दी थी दस्तबरदारी, और आज नहीं तो कल पाकिस्तान नेवी की जैसे ही ये जो अमन की कॉन्फ्रेंस है और जो उस पर मशक हो रही है, उसके बाद MKM भरपूर तरीके से इस कदम को दोबारा उठाने का हक़ रखती है। इसकी तारीख़ का हम फ़ैसला कर लेंगे। ज़िमनी इंतख़ाबात भी सर पे हैं, तो हो सकता है हमारी टाइमिंग की तरजीहात मुख्तलिफ हों, और अभी हम बैठ के आपको इस हवाले से अपना हतमी फ़ैसला बता देंगे। लेकिन आप सब जानते हैं, जो ये लोग खड़े हैं, ये पाकिस्तान की आवाम के वो तबका है जिसकी हुब्बुल वतनी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, कोई सवाल नहीं कर सकता, जो टैक्स देने से लेकर इस मेहनत करने तक, और जब पाकिस्तान की जमहूरियत को और हुकूमतों को बनाने के लिए हमारी ज़रूरत पड़ी है तो हमने कुर्बानी दी है। तो इंशाअल्लाह ताला हम आपको अपने फ़ैसले से आगाह कर रहे हैं। तारीख़ तो ये बताती है कि हम इंशाअल्लाह ताला ऐसी कोई रुकावट डालना नहीं चाहेंगे और अपना किरदार अदा करेंगे, लेकिन ये मुतालबा ये पहुँचाइएगा बात हमारी जी बिल्कुल कि ये MKM की ज़रूरत नहीं, कराची की भी ज़रूरत नहीं, ये पाकिस्तान की जमहूरियत और पाकिस्तान के वक़ार की बात भी है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपका बहुत शुक्रिया खालिद भाई कि आपने इस बात को कंसीडर किया और राब्ता कमेटी से बैठकर आप फैसला भी करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है एक ऐसी कॉन्फ्रेंस और नेवी के आला हुकाम जो हैं बहरिया के, उन्होंने राब्ता किया और आप तक ये पैगाम पहुंचाने का कहा, तो मैं समझता हूं कि आपका फ़ैसला हमेशा से जैसे पाकिस्तान के हक़ में रहा है, तो ये भी इंशाअल्लाह ताला आपकी तरफ से एक पॉजिटिव होगा। शुक्रिया आपका बहुत। गवर्नर साहब, आप वफाक के नुमाइंदे हैं, आपकी जमात पर हमेशा जो है वफाक और ख़ास तौर पर इस्टेब्लिशमेंट जो है वो शक की निगाह से देखती रही है और शायद देखती भी है, तो वो शक की निगाह को ख़त्म करने में आपने अब तक क्या किरदार अदा किया? MKM के दफातर का मुतालबा भी जो मुआहदा हुआ था उसमें शामिल था, और वो मुतालबा भी MKM का है, क्या उस हवाले से भी कोई किरदार आप अदा कर रहे हैं? देखें, हमेशा से तारीख़ गवाह है कि जिस पे ज़्यादा शक होता है प्यार भी उसी से होता है। तो वो प्यार पाकिस्तान के साथ है और हमारा पाकिस्तान के साथ है। दफातर की जहाँ तक आपने बात की, जो हमारा एग्रीमेंट, जब मैं खुद राब्ता कमेटी का हिस्सा था, मुझे इस बात का पता है कि खालिद भाई ने हमेशा जब भी मुज़ाकरात हुए हैं तो मिसिंग पर्सनस के हवाले से और दफातर के हवाले से ये पहला पॉइंट रहा है, और आज भी जहाँ जहाँ इस बात को किया जाता है उसी में ये बात पहले रखी जाती है कि जो मिसिंग पर्सनस हैं और ऑफिसेज जो है वो हमारा पहला मुतालबा है, और उसके बाद ही दूसरी कोई बात की जाती है। गवर्नर साहब, हम ये देख रहे हैं कि बार बार कॉम्प्रोमाइज़ आप लोगों की तरफ से, MKM की तरफ से किया जा रहा है। अगर धरने की बात कर लें और जो बहरिया की मशक़ें हो रही हैं, तो आज जमात इस्लामी ने भी तो एहतजाज किया इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर।
उनको तो कॉम्प्रोमाइज़ करने का नहीं कहा गया। हम पाकिस्तान के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रवा नेवल कॉन्फ्रेंस को मद्देनजर रखते हुए इतवार को होने वाला एहतजाजी धरना मौखर कर दिया गया है। लाहौर में जारी पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल के दूसरे रोज सहाफ़ी और एंकर पर्सन आसमा शिराजी की किताब कहानी बड़े घर की रूनुमाई हुई। आसमा शिराजी कहती हैं कि हमें दुश्मनों से प्यार करना चाहिए। सुहेल वड़ाइश का कहना था कि पाकिस्तान में आज़ादी इजहार के महज दावे हैं। नूरुल हुदा शाह ने कहा कि सियासतदानों को बुरा न कहें, इसका फ़ायदा कोई और उठाता है। रिपोर्ट करेंगे इससे मुताल्लिक़ इरफान नज़ीर। अलहमरा हॉल लाहौर में पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल का दूसरा रोज सहाफ़ी और एंकर पर्सन आसमा शिराजी की किताब कहानी बड़े घर की रूनुमाई हुई। आसमा शिराजी, सुहेल वड़ाइच, मुजीबुर रहमान शामी और नूरुल हुदा शाह ने इजहार ख्याल किया। आसमा शिराजी ने कहा कि हम 75 साल से दायरों में सफर कर रहे हैं। इक़्तिदार और हुक्मरानी के अंदाज बदल गए। हुक्मरान सिर्फ हिटलर और गोयबल्स को पढ़ते हैं। कलम आमरीत के दौर में लिखना सीख चुका, कलम अब फसाइयत के दौर में भी लिखना सीखे। सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच का कहना था कि आसमा शिराजी कालम निगार के साथ अदीब भी हैं। नूरुल हुदा शाह ने कहा कि जो सियासतदान अवाम तक ना पहुंचे वो बेकार है। सियासतदान वो है जो कीचड़ और सैलाब में उतरे, सिर्फ किताबें ना पढ़े। सियासतदानों को बुरा ना कहें, इसका फायदा कोई और उठाता है। मुजीबुर रहमान शामी का कहना था कि पाकिस्तानी दस्तूर से प्यार करते हैं। दिल जितना साफ होगा कलम उतना ही बेबाक होगा। इक़्तिदार वाले कैमरे और कलम से डरते हैं। कहने और बोलने की इजाजत में ही सबका भला है। हुक्मरान अपने मतलब की चीज पढ़ लेते हैं। हुक्मरानों ने पढ़ने के लिए बंदे भी रखे हुए हैं। ज़ियाउल हक खुद पढ़ते थे। सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन हामिद मीर साहब का कहना है कि मुदब्बिर अपने मुल्क के लिए सोचता है, हुक्मरान नौजवानों के मुस्तकबिल का सोचें, माजी की गलतियों से सबक सीखें और आगे बढ़ें। पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल के दूसरे रोज़ खुसूसी नशिस्त से खिताब करते हुए हामिद मीर ने कहा, नौजवान पाकिस्तान को छोड़कर नहीं जाना चाहते, नौजवानों पर उनकी बर्दाश्त के मुताबिक बोझ डालें। उन्होंने कहा कि आइन मुल्क को जोड़ता है और आइन ने मुल्क को जोड़े रखा है। बहादुर कौम को मुखलिस लीडर की ज़रूरत है। सियासी क़यादतें अपने अंदर जमहूरियत लाएं और तरबियत याफ्ता कैडर तैयार करें।